Vaishnavi, can you hear me? Yes, sir. Now I can. Great. Vaishnavi, I cannot see you, dear. So can you on your video, please? Yes, sir. Yes, dear. Am I or Yes, visible? Vaishnavi. Good evening, dear. How are you? I'm good. How are you? Yes, I'm fine, dear. Thank you. Vaishnavi, introduce yourself first. Sir, my name is Vaishnavi Panchal. I have completed my Bachelor's of Science in Biotechnology. I Okay. have completed in September 2020. Now I'm Okay. looking for study abroad in Canada, Okay. which is why I want to talk about. Okay. So I live in Kalol. Okay. Vaishnavi. I have Yes. Yes. yes, sir. Yes, sir. Please go on, dear. Sorry. Please, I can interrupt you. I have given my IELTS exams. I have scored each 6 bands and overall 6 bands. Great, dear. Fantastic. So you have prepared everything, eh? So you know about the IELTS, you finish the IELTS, right? Vaishnavi, which field are you want to go in Canada? Or do you have decided in your mind you have to select in that field to study in abroad? Yes, I have choose biotechnology subject because I'm interested in that particular one. And I have also tried to apply, but I got rejection in 3 colleges Which because one? they were Flaming. Okay. The college name were Flaming, Loyalist, and Mohawk. Okay. They rejected because as reason they gave me that I don't have math subjects in 11th and 12th standard. Yes, true, true. So you applied from CARE for all of 3 colleges? No, I applied from another agency, So but dear, I just advise you why you applied those colleges where you are not meet your requirement, why you didn't check out before applying that. actually I was not aware about it because I have heard from my friends who have already applied and got the offer letter for the Not, same subject. no, dear, They, that might be happened from some years ago, not in this intake. no, sir, the same intake I'm talking about. Okay. So no, dear. They didn't ask about the math subject. They No, were dear. the same as every college has the same criteria. आपके माध्यम से और भी स्टूडेंट्स को मैं बचाना चाहता हूं कि हर एक कॉलेज की हर एक कोर्स के लिए सभी बच्चों के लिए वैष्णवी एक ही क्राइटेरिया होता है, ठीक है? वो आपके लिए अलग है, आपकी फ्रेंड के लिए अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आप मेरे को रियल में आपकी फ्रेंड का ऑफर लेटर दिखाएंगे तो उस पर मैं ज्यादा अच्छा कमेंट करके आपको बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल हम उस चीज को यहाँ पे साइडलाइन करते हैं, अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपका हो सकता है जनवरी 22 के लिए, ठीक है? सितंबर में रिकमेंडेड नहीं करूंगा, सितंबर 21, क्योंकि वो एकदम नजदीक है ना? फिर आपको फीस पेड अप करनी होगी, आपको जीआईसी पेड करना होगा, आपको मेडिकल करना होगा, आपको बायोमेट्रिक करना होगा, उसके साथ आपको 2 डोज वैक्सीन के भी लेने होंगे कनाडा जाने के लिए, ठीक है? मैं रिकमेंडेड करूंगा जनवरी 22। जनवरी 22 में आप बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ करके कोर्स आता है, शायद आपने बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिया होगा और आपके जो फ्रेंड है उसने बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ लिया होगा। आप समझ रहे हो? लिख लीजिएगा तो आपको रियल में आपकी गलती या एजेंट की गलती आप पकड़ पाएंगे, है ना? तो यही चीज होती है बाकी एजेंट में और केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विस जैसे एक्सपर्ट एजेंट में, ठीक है? आपने जो कोर्स अप्लाई किया वो अप्लाई किया होगा बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, समझते हो वैष्णवी? और आपके फ्रेंड ने अप्लाई किया होगा बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ। ओके डियर, सो आपका शायद उसी ही कॉलेज में से एडमिशन आ सकता है बेटा, समझते हो? एक्चुअली सर मैंने अप्लाई किया था, उसमें बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ ही था, उसमें भी सेम रीजन दिया था।
नहीं, आई हैव टू चेक। अगर आप बोल रहे हो आपकी फ्रेंड को हाँ. मिला है, आपको नहीं मिला, तो देखो पहले तो ये बात है, पूरी कॉलेज सभी के लिए एक ही रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम 14 साल से कैनेडियन कॉलेजेस के साथ काम करते हैं बेटा। तो कैनेडियन कॉलेजेस एक स्टूडेंट दूसरे ऐसा डिफरेंट नहीं देखते, ठीक है। तो मेरे को ये डिटेल जब केयर इमिग्रेशन में अगर रजिस्टर होते हो तो ये सारी डिटेल आप प्रोवाइड करना। हो सकता है तो उसी कॉलेज में उसी ही एप्लीकेशन चार्ज के अंदर हम आपका ट्राई करेंगे काम करने के, ठीक है। Okay. अगर नहीं होता है तो हम अपने तरीके से भी आपको अवेलेबल ऑप्शंस देंगे, ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं बच्चे, वो समझ लीजिए कि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग किया है या फिर बायोटेक्नोलॉजी साइंस किया है। आपने बायोटेक्नोलॉजी साइंस किया है जो 12th बायोलॉजी के बाद होता है, ठीक है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ कर सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना डेवलपमेंट सर्विस वर्कर का कोर्स आता है वो कर सकते हो। आप फार्मास्यूटिकल एंड फूड साइंस, फार्मास्यूटिकल एंड फूड साइंस कर सकते हो, समझ गए। तो ये Yes, sir. हेल्थ वाले कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। इन सभी कोर्सेज जो मैंने बताया उसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है 12th में, ठीक है। तो ये सारे कोर्स आप बायोटेक्नोलॉजी के बाद कर सकते हो फॉर जान 22 में। और सर कौन सी मतलब कॉलेज की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती जो है या हर एक फिर कॉलेज की फीस कम रिक्वायरमेंट्स समझा रहा हूँ, हर एक कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। उनको ये कोर्स के लिए 12th में आपके बायोलॉजी के भी मार्क्स देखेंगे, आपका ग्रेजुएशन में आपके कितने बैकलॉग है वो भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूंगा कि फेंशो कॉलेज में आपका होगा करके, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने आपके डॉक्यूमेंट देखे नहीं है, नहीं मेरी टीम ने डॉक्यूमेंट देखे हैं, तो वो उसके एवोल्यूशंस के लिए आपको हमारे यहाँ रजिस्टर करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी टीम एसेस करके आपको 3 से 4 ऑप्शन देगी, ठीक है, कि ये जनवरी 22 में ये ऑप्शन वैष्णवी के लिए अवेलेबल है। वो आप 1-2 दिन और लगाइए, आप भी खुद देखिए उस पर, है ना। फिर आप हमको बताइए कि 4 में से 2 कॉलेज मेरे को या 3 कॉलेज मेरे को अच्छी लगी, तो हम आपकी तीनों कॉलेज में एप्लीकेशन डालेंगे। हाँ, तो वो पूरा लिंक हम आपको देखेंगे कि ये आप सर्च कीजिए। आप पहले आपको अभी नॉलेज हो गया है क्योंकि आपका 3 कॉलेज में एप्लीकेशन चार्ज बिगड़ा, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज हो गया कि ये रिसर्च पहले किया होता तो वो एप्लीकेशन चार्ज बच जाता बेटा, है ना। तो वो अभी हम भी भेजेंगे आपको, फिर आप रिसर्च कीजिए, उसमें से आपको 2 कॉलेज अच्छी लगी तो आप बोलिए कि निश्चित सर 2 में अप्लाई कर दीजिए। हम उसमें भी आपको एक ऑप्शन दिखाएंगे कॉलेज का, कि कई कॉलेज क्या करती है वैष्णवी, आपको कोर्स अच्छा लगता है, उसका कंटेंट अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास नहीं, गुजरात के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स के हिसाब से वहां पर कई कोर्स नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के फेवर में हमने कॉलेजों को रिक्वेस्ट किया है कि आप उन बच्चों के लिए कुछ कीजिए। तो वो लोग एक मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा एग्जाम भी करवाते हैं, तो वो भी हम वैष्णवी आपको गाइड करेंगे कि कौन सी कॉलेज ये मैथ्स की एग्जाम करवाएगी आपकी, है ना। फिर आपको तय करना है कि आपको ये चांस लेना है या फिर आपको उसी कॉलेज में जाना है जहां पर ये एग्जाम का झमेला हो ही नहीं, तो वो आप तय कीजिए, ठीक है। हमारा काम है आपको अच्छा सा ऑप्शन निकाल के बताना जो हम बताएंगे, फिर आप तय कीजिएगा। अच्छा, उसके लिए मेरे को ये भी देखना पड़ेगा आपके 12वीं में कितने मार्क्स है, आपके बैकलॉग कितने हैं, आपके 12वीं में बायोलॉजी के सब्जेक्ट कितने हैं, है ना। तो वो पूरा डिटेल एनालिसिस होगा, तब हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर। और कुछ? और ओंटारियो में सर कॉलेजेस कौन सी आपके हिसाब से अच्छी है जहाँ पे स्टडी ज्यादा इजी रहती है स्टूडेंट्स के लिए? ये थोड़ा लोड कम। क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ओंटारियो में बहुत सी कॉलेजेस का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर एक कॉलेज का नाम बोलूंगा तो दूसरों को गलत लगेगा, तो ये नहीं बोलना चाहिए। ओंटारियो में मेरा वर्ड है सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कैनेडियन गवर्नमेंट फंडेड है और जो एसडीएस के लिस्ट के अंदर आती है डियर, वो सारी कॉलेजेस ओंटारियो में इक्वल इंप्रेशन रखती है
फॉर स्टडी अब्रॉड, और जो उसका क्वालिटी होता है वो भी बहुत ही अच्छा मेंटेन करती है। लेकिन आप कौन सा कोर्स वहां पे करना चाहते हो, हर एक कॉलेज की कोई ना कोई कोर्स में मास्टरी होती है, या फिर आप समझ लीजिए उस सब्जेक्ट में उसके पास ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ फील्ड अवेलेबल होता है। तो वो हम आपको अलग करके मेल के थ्रू रिकमेंडेड करेंगे कि ये कॉलेज के लिए आपको ये कॉलेज का हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। क्यों रहेगा उसका भी रीजन हम आपको देंगे। बाकी जो आपने जो अप्लाई किया है, फ्लेमिंग, लॉयलिस्ट, मोहाक और दूसरी भी जो आप कॉलेज सोच रहे होंगे या अप्लाई करना चाहेंगे, सारी कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है और सारी कॉलेजेस आर इक्वल इंप्रेशंस फॉर द पीआर एंड अदर थिंग्स। ओके सर। और वहाँ पे सर फिर इफ मैं अपनी बायोटेक में ना जाऊँ, कोई और सब्जेक्ट उसके रिलेटेड चूज करना, तो फिर उसके लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं, अगर उसके सिमिलर फील्ड में जाना चाहते हो तो आप एनवायरमेंट, ये बहुत ही बढ़िया और हॉट टॉपिक है, एनवायरमेंट टेक्नीशियन कर सकते हो आप। ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग है अभी पूरे वर्ल्ड में, है ना, क्योंकि आप देखो जो कार्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी अभी अपना चेंज फ्यूल जो होता है वो चेंज करके इलेक्ट्रिकल कार में जाते हैं, या कोई भी जगह पर एनवायरमेंट की जरूरत ज्यादा होती है ना, तो एनवायरमेंट टेक्नीशियंस या एनवायरमेंट के रिगार्डिंग 2-3 और कोर्सेज है, ये आपके लिए फ्यूचर के एक्सेप्ट से बहुत ही बढ़िया रहेंगे। वो भी हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अलावा। और अगर कोई स्टूडेंट अपना कोर्स चेंज करता है, लाइक साइंस ले आए तो फिर बिजनेस में जाए तो Canada is welcoming for those students who change their field, but they have to need a particular reasons। आपके मम्मी या फादर के या आपके पेरेंट्स का कोई फैमिली बिजनेस है वो आपको करना है, या फिर आपका ड्रीम है बचपन से कि मेरे को एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनना है ये फील्ड में, है ना, तो ऐसा विजन आपका क्लीन होना चाहिए। और वो लोग जो हम कोर्स चेंज करते हैं उसको वो लोग बढ़िया एक्सेप्ट करते हैं। कनाडा को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ये कोर्स से दूसरा कोर्स क्यों किया। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना रहेगा आपके पास उसका स्ट्रॉन्ग और अच्छा वाला और जेन्युइन रीजन होना चाहिए बस। और सर कौन सा बेहतर रहता है कि आप अपनी फील्ड में जाओ या फिर फील्ड चेंज करो? वो मैंने पहले भी बताया कि जिस लोगों का ड्रीम होता है, तो जैसे आपसे मैं कम्युनिकेट करके ऐसा समझता हूँ, वैष्णवी आपको फील्ड चेंज करने का मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप अगर स्ट्रॉन्ग इतने होते है ना तो आप पहले से मेरे को दूसरा ऑप्शन पूछते ही नहीं, आप मेरे को बिजनेस के ही ऑप्शन पूछते। तो एज आई बिलीव आपको चेंज नहीं करना चाहिए, आपकी खुद की ही फील्ड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। ओके सर। बेटा, तो आप अपनी फील्ड में उससे दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा आपको वहां पे पढ़ाई में बहुत ही आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी यू डन इट 6 सेमेस्टर इन इंडिया, 3 years, राइट। तो आप वो चीज को आसानी से समझ सकेंगे, पास आउट अच्छी तरह हो सकेंगे, आपका स्कोर हाई आएगा, इससे आपको फील्ड अपनी मिलने की बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा एज पर योर कन्वर्जेशन स्टिल विथ मी कि आप अपनी फील्ड को चूज कीजिए, उसमें प्रोस्पेक्ट और उसमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अच्छी सी अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज। और सर फिर आगे जाके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है तो वो कैसे करते हो? और अच्छा, ऐसे तो मतलब किससे अप्लाई करके अप्रूव करे वो लोग? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो। कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अभी हम स्टूडेंट वीजा की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टूडेंट का पूरा काम केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज की अहमदाबाद या शायद हमारी कलोल में भी ब्रांच है, ठीक है, तो वो लोग प्रोसेस करेंगे, आपका वीजा लगेगा, तब हमारे यहाँ केयर इमिग्रेशन में तकरीबन ये हमारा 24वां प्री डिपार्चर सेमिनार होगा। वो प्री डिपार्चर सेमिनार में हम आपको पूरी डिटेल देंगे आपके फ्यूचर रिगार्डिंग, जैसे आपको एयरपोर्ट पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना रहेगा, आपका फ्यूचर में स्टडी परमिट, शायद कुछ हुआ और आपका स्टडी परमिट आपको एक्सटेंड करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आपका वर्क परमिट, जैसे आपका ये जो सवाल है कैसे पढ़ाई खत्म हो गई फिर वर्क परमिट कैसे मिलेगा,
तो वो भी हम वो प्री डिपार्चर सेमिनार में आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका वर्क परमिट कैसे होगा कन्वर्ट। वो भी आपको जीसी की आईडी और पासवर्ड से होगा, और उसके लिए हमको 5 घंटा चाहिए। ठीक है, तो वो 5 आवर्स आप उसमें प्रेजेंट होके जब आपका वीजा लगेगा, तो वीजा लगने के बाद हमारा पूरा प्री डिपार्चर होता है। तो और उसके साथ वहां पर हम ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, जैसे मैंने आपको एक कॉलेज सजेस्ट किया सटबरी में जाइए कैम्ब्रियन में, या फिर मैंने आपको सजेशन किया कि आप नॉर्दर्न कॉलेज में जाइए टिमिन्स में, आपको कोर्स अच्छा लगा, लेकिन आप बोलेंगे कि सर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विस की यही एक यूनिकनेस है कि आपको कोई अपने फ्रेंड रिश्तेदार को कॉल करने की जरूरत नहीं, चाहे वो वहां पे रहता भी हो। क्यों? उसका पूरा एयरपोर्ट पिकअप से लेके आपका रहना खाना पीना, कहाँ पे ठहरेंगे, कौन से बच्चों के साथ ठहरेंगे, ये सारी चीज केयर ही अरेंज करके देती है, जिसका उसका नाम है। ऐसे ही हम आपकी केयर करेंगे, चिंता मत कीजिए, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको नहीं देना। ठीक है, आपको सिर्फ यही रिसर्च करना है कि ये कोर्स जो हमने दिया है उस पर आप बहुत बड़ा रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगता है, कंटेंट देखिए, सब्जेक्ट देखिए, बस फिर हम अप्लाई करेंगे। हमारा काम अप्लाई करना है, हमारा काम वीजा लेना नहीं है। ठीक है, ये भी समझिए, केयर इमिग्रेशन वीजा नहीं, उसको ऑथोराइजेशन है। ठीक है, तो वो भी हम अच्छा सा आपका कवर लेटर बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको वीजा लगाएंगे। वीजा अगर लग जाता है आपका, तो उसके बाद पूरा अरेंजमेंट है ना। अच्छा, वहां पे जाके भी हो सकता है वैष्णवी आपका शायद कहीं पासपोर्ट खो गया, खोआ होगा, किसी बच्चों का भी खोता होगा, तो ये भी टेंशन मत लीजिए, वो प्री डिपार्चर में हम सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं। ओके सर। और फिर पीआर के लिए भी आप ही हेल्प करते हो आगे? यस, हम ही हेल्प करते हैं। पीआर कनाडा में तकरीबन 10 से 12 तरीके से होता है। वो कौन कौन सा तरीका है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए पहले से, क्या नहीं करना चाहिए, वहां पे पहुंचने के बाद आपको कैसे रहना चाहिए, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस क्या है, SIN नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन हम प्री डिपार्चर में देते हैं। ओके। और सर, इफ मैंने बायोटेक के अलावा कोई और कोर्स किया है, वहां पे लेके जाती हूँ कनाडा में, तो फिर पीआर होने के बाद मुझे अगर मास्टर्स करना है बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो लोग फिर हमारी इंडिया की डिग्री एक्सेप्ट करते हैं बैचलर्स की? यस, वो लोग देखते हैं कि आपने इंडिया में से कौन सी डिग्री की। वो लोग ऐसा भी देखते हैं कि इंडिया में आपके 12th में मैथमेटिक्स है कि नहीं है ना। तो ऐसा वो हाँ तो नहीं है डियर, तो वो चीज आपको वहां पे जाके मास्टर्स में शायद ये ग्राउंड पे वो लोग आपको रिजेक्ट भी, क्योंकि मास्टर्स के लिए जनरली वो लोग 4 इयर्स बैचलर डिग्री की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और आपने बैचलर डिग्री इंडिया में की है, वो 3 इयर्स की है। हाँ। तो वो भी इलिजिबल नहीं होगी वैष्णवी। तो आपके आपने जो प्रेजेंट पढ़ा है उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है 2 इयर्स डिप्लोमा। तो फिर 2 इयर्स डिप्लोमा हो जाता है मेरा बायोटेक में, तो वो मुझे मास्टर्स के लिए अलाउ कर देंगे? नहीं करेंगे। मास्टर्स के लिए अगेन आई रिपीट, मास्टर्स के लिए उनको बैचलर डिग्री चाहिए विद 4 इयर्स। ओके, सो मुझे दोबारा वहां पे बैचलर्स करना यस होगा? यस, या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है, आपने यहाँ पर जो बैचलर किया उसको आप आपने शायद सुना होगा वैष्णवी, मालूम नहीं मेरे को आपने सुना है कि नहीं, एक WES करके वेस एवोल्यूशन होता है, सुना है आपने ये? नहीं सुना मैंने। नहीं अच्छा, तो उसमें क्या है कि एक थर्ड पार्टी एवोल्यूशन बॉडी है, वहां पर आपको अपनी मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट भेजनी पड़ती है। ठीक है, वो लोग आपके बैचलर को इवोल्यूट करेंगे, और आपको 3 साल के बैचलर को वो लोग बताएंगे कि कैनेडियन हिसाब से ये आपका बैचलर 1.5 ईयर का है हमारे कनाडा में, या 2 साल का है बैचलर। ठीक है, तो वो 2 साल आप कनाडा में अगर कहीं बैचलर करने जाओ, तो वो एवोल्यूशन के हिसाब से आपके 2 साल कनाडा में घट जाए, मतलब आपको रेस्ट ऑफ 2 इयर्स ही कहीं पर करना होगा फॉर अ बैचलर डिग्री। आपको 4 साल का बैचलर फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे से पीएचडी करनी है मुझे? हाँ, फिर आगे पढ़ना जैसे है आपने तो? एक दफा बैचलर वहां पे अपना कर दिया,
तो आप समझ गए कि बैचलर के लिए आपको 4 साल का फिर से नहीं करना है, आपको इंडिया का वेस एवोल्यूशन करवाना रहेगा। वो वेस एवोल्यूशन के हिसाब से आपका बैचलर खत्म होगा। बैचलर में आपने रैंक अच्छे लाए, ठीक है, उसके बाद आपको फिर मास्टर करना होगा। खत्म करते हो फिर अच्छा, मास्टर में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी में 2 ऑप्शन होते हैं वैष्णवी। एक होता है मास्टर्स विद कोर्स बेस, और दूसरा होता है मास्टर विद थीसिस बेस या रिसर्च बेस। ठीक है, तो जैसे आपने बताया आपका ड्रीम है पीएचडी करना, तो आप मास्टर विद थीसिस बेस को चूज कीजिए। उसमें भी एक ऑप्शन आता है, थीसिस में आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहते हो, ठीक है। फिर वहां पे भी वो आपका जो फैकल्टी होगा वो भी अवेलेबल होना चाहिए। आपको वो थीसिस में गाइड करने के लिए आपको गाइड सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप मास्टर्स का गाइड सिलेक्ट करेंगे, तुरंत आपके एडमिशन वहां पे ग्रांट होगा। और ये सारी चीज मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको पीआर के बाद कीजिए, पैरेलल हो सकता है वहां पे। जैसे मैं देख रहा हूँ वैष्णवी, आपकी एज बहुत छोटी है, शायद आप 23 या 24 भी शायद आपको हुए होंगे। तो हैं कितने? 21। हाँ बस, तो फिर आप वैष्णवी क्या कर सकते हो, पहला टारगेट पीआर का रखिए, क्योंकि ये सारे में ना आपको इंटरनेशनल फीस बहुत महंगी पड़ेगी। आप पीआर लेने के बाद वहां के सिस्टम से पेमेंट करके आप अपनी पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर सकते हो, है ना, साथ में जॉब और साथ में पढ़ाई। और वहां पे लोग 30 साल 32 साल या 35 साल तक आराम से मास्टर्स या पीएचडी करते हैं, है ना। तो आप ऐसा रखिए तो आपको एक्सपेंस बहुत कम होगा डियर। वरना बैचलर करने जाएंगे उसकी फीस भरेंगे, आप मास्टर्स करने जाएंगे उसकी फीस भरेंगे। तो आप पहले पीआर टारगेट रखिए और उसके बाद वहां पे डोमेस्टिक की तरह पढ़िए। पार्ट टाइम भी पढ़ सकते हो, डोमेस्टिक आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे फुल टाइम ही पढ़ना पड़ेगा, आप पार्ट टाइम नहीं पढ़ सकते। लेकिन एज अ पीआर आप पार्ट टाइम भी पढ़ सकते हो, है ना। तो ये पाथवे आपको ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए, एज आई रिकमेंडेड टू यू। ओके सर। और ये कोऑप जो कोर्स होता है और प्लेसमेंट वो कैसे होता है सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने बहुत रिसर्च करके रखा है। कोऑप कोर्सेज यानी वो कोर्सेज होते हैं वैष्णवी जहां पर आपको पढ़ाई के दौरान ही कुछ तरीके से इंटर्नशिप देते हैं वो लोग, या वर्किंग के लिए आपको कहीं भेजते हैं, कुछ किसी इंडस्ट्री में बेचते हैं या कोई कंपनी में बेचते हैं, उसको कोऑप कहा जाता है। ये कोऑप का बेनिफिट यही है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है कि कंपनी में काम कैसे होता है, वहां की कंपनी का प्रोटोकॉल क्या रहेगा, वहां की कंपनी का एचआर सिस्टम क्या रहेगा। तो आप एग्जैक्ट कैनेडियन हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाते हो, और यही तैयारी आगे जाके आपको अपनी परमानेंट जॉब ढूंढने में बहुत ही आसानी रहती है। तो ये कोऑप का इतना बेनिफिट होता है, उसका उस साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको एक्सपीरियंस, आपने ये कैनेडियन कंपनी में काम किया है उसका सुपरवाइजर अपना खुद सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं। तो कहीं आप काम करने जाते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है अपनी फील्ड में। और सर मतलब इफ मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है 2 इयर्स का, तो मुझे अपनी फील्ड में जॉब चाहिए, तो मैं वो कैसे फाइंड करूंगी फिर वहां पे? यही यही आपको बेनिफिट कराएगा कोऑप। सर वो पेड और नॉन पेड दोनों होता है, राइट? और दोनों होता है वो, क्योंकि अभी से आप बताइए कि आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है वैष्णवी, उसमें आप अभी से श्योर हो सकते हो कि आपका कितने परसेंटेज आएंगे कनाडा में? स्टडीज पे डिपेंड होता है। एग्जैक्टली तो इसीलिए पेड भी कोऑप नॉन कोऑप ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो इलिजिबल ही नहीं होता है अच्छी कंपनी में जाने के लिए, उसके पास परसेंटेज अच्छे है ही नहीं, तो कॉलेज अगर वो उन बच्चों को अपनी कंपनी में ऐसी कंपनी में रिकमेंडेड करेगी तो कंपनी वाले की भी तो कंप्लेन आएगी कॉलेज पे कि आप कैसे बच्चों को हमारे यहाँ रिकमेंडेड करते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो पेड या नॉन पेड हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर, एक्सपीरियंस लेना इंपॉर्टेंट। तो आपको अपनी फील्ड का जॉब, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा अपनी फील्ड की जॉब कैसे मिले, तो वहीं से ही आपको रेफरेंस मिलेगा, आपको वहीं से ही प्लेसमेंट मिलेगा। आपकी कॉलेज में कंपनी आती है प्लेसमेंट करती है। और इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है सर? उसके लिए पूरा सेशन हर एक कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर के बच्चों को वो लोग पूरा सेशन देते हैं। वो क्या आपको सेशन में देते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
वो लोग एक कैमरा रख के आपको चलाते हैं, आपको बात करने का तरीका, आपका रिज्यूम कैसे आपको बनाना है, रिज्यूम में कैसे अपडेट करना है, इतना माइक्रो लेवल पे जाके आपको एनालिसिस बताते हैं वो लोग, और उसके बाद आपको तैयारी करनी होती है, उसके बाद वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। तो आपको जॉब मिलने का बहुत ही अगर ये सारी सिस्टम आप कॉलेज में फॉलो करेगा, आपको कॉलेज के साथ आप रेगुलर टच में रहेंगे, जैसे कॉलेज आपको तैयार करना चाहती है आप तैयार होंगे, तो यही चीज आपको बेनिफिट मिलेगी लास्ट में जॉब आपकी फील्ड की दिलवाने की। और सर कोर्सेज भी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के, तो आप कौन सा बेस्ट सजेस्ट करोगे? 2 इयर्स के, 2 इयर्स, करेक्ट। क्योंकि उसमें 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल सकता है जो मैक्सिमम टाइम है। और इफ कोई स्टूडेंट 3 इयर्स का करता है तो उसको कितना वर्क परमिट का 3 टाइम इयर्स मिलता का है? सेम। सेम, और 1 ईयर में? 1 ईयर का सिर्फ। ओके। 2 इयर्स के बाद ही स्टार्ट होता है 3 इयर्स का मिनिमम 2 इयर्स की पढ़ाई आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट दिलवाती है। इतने क्वेश्चंस थे सर। और कुछ? बहुत क्वेश्चंस पूछे आपने, लेकिन आई एम हैप्पी टू evaluate such a students who has a very clever before going in Canada। तो आप समझ लीजिए, अगर आप वहां इतना अच्छा सा प्रिपेयर करके जाएंगे, हमारे यहाँ और प्री डिपार्चर करेंगे, हमारे यहाँ और नॉलेज लेंगे, तो आप कितना अच्छा वेल नॉलेजेबल होंगे वहां पर पहुंचने से पहले। और ऐसे ही बच्चे कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस को चाहिए, ऐसे ही बच्चे कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वेल प्रिपेयर होके आए। ऐसा नहीं वहां पे जाने के बाद फिर सोचे कि अभी मेरे को क्या करना है। यू हैव टू वेरी क्लियर विजन फ्रॉम हियर। सो आई एम रियली हैप्पी वैष्णवी, योर रिसर्च, योर क्वेश्चंस एंड और भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हो वैष्णवी, तो आप केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज की टीम अहमदाबाद, कलोल, मेहसाणा में है, वहीं पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके और भी अगर क्वेश्चंस हो तो भी आप मेरे को वहां पर आके भी पूछ सकते हो। ठीक है? ओके सर। Okay, dear. Bye bye. Take care. बाय सर, टेक केयर, थैंक यू। Welcome.